السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سما، میں ہوں فواز زیدی اور میں ہوں سدرا میر۔ بلیٹن میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں سانحہ بلدیہ فیکٹری کیس کی، جس کا فیصلہ آج سنایا جائے گا۔ زندہ جلائے گئے 259 افراد کے لواحقین کو اس دن کا انتظار کرتے 8 سال بیت گئے۔ 12 ستمبر 2012 کو بلدیہ ٹاؤن کی فیکٹری میں آگ بھڑک اٹھی تھی۔ ابتدائی طور پر واقعے کو شارٹ سرکٹ کا نتیجہ قرار دیا گیا، لیکن بعد میں جوائنٹ انٹیروگیشن ٹیم نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ آگ لگی نہیں بلکہ بھتہ نہ دینے پر لگائی گئی۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے فیصلہ 2 ستمبر کو محفوظ کیا تھا۔ کیس میں کب کیا موڑ آیا، جانتے ہیں ساتھی اینکر مہک اسلم سے۔ 8 سال 170 سماعتیں، انسداد دہشت گردی عدالت میں ملکی تاریخ کا اہم مقدمہ انجام کو پہنچا۔ کیس کی شروعات سے انجام تک کئی اہم موڑ آئے۔ 11 ستمبر 2012 250 خاندانوں پر قیامت ٹوٹی۔ 12 ستمبر 2012 فیکٹری مالکان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ 14 ستمبر 2012 فیکٹری مالکان عبدالعزیز بھائیلا، ارشد بھائیلا اور راشد بھائیلا نے سندھ ہائی کورٹ سے ضمانت حاصل کی۔ عوامی دباؤ بڑھا تو سندھ حکومت نے 12 ستمبر کو سندھ ہائی کورٹ کے سابق جج زاہد قربان کی سربراہی میں تحقیقاتی ٹریبیونل قائم کر دیا۔ تحقیقاتی ٹریبیونل نے واقعے کو شارٹ سرکٹ کا نتیجہ قرار دیا، مگر بھانڈا اس وقت پھوٹا جب ایم کیو ایم کارکن رضوان قریشی کے خلاف تفتیشی رپورٹ عدالت میں جمع کی گئی۔ 7 فروری 2015 کو پیش کی گئی رپورٹ میں یہ انکشاف ہوا کہ بلدیہ فیکٹری میں آگ لگی نہیں تھی بلکہ لگائی گئی تھی، اور 23 فروری 2016 کو ڈی آئی جی سلطان خواجہ کی سربراہی میں جی آئی ٹی نے بھی یہی رپورٹ دی اور مقدمے میں دہشت گردی کی دفعات شامل کرنے کی بھی سفارش کر دی گئی۔ 11 مارچ 2017 کو مقدمہ انسداد دہشت گردی عدالت منتقل کر دیا گیا۔ 19 ستمبر 2019 مقدمے میں اہم موڑ آتا ہے۔ فیکٹری مالک ارشد بھائیلا نے ویڈیو لنک کے ذریعے اپنا بیان ریکارڈ کرایا اور 21 نومبر 2019 استغاثہ کی جانب سے شواہد مکمل ہو گئے۔ عدالت نے 400 گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے۔ 3 فروری 2020 کو فریقین کے وکلا کے حتمی دلائل کا آغاز ہوا اور 2 ستمبر کو دلائل مکمل ہونے پر یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا۔ سانحہ بلدیہ کیس میں جاں بحق ہونے والے ملازمین کے اہل خانہ کے زخم آج بھی تازہ ہیں۔ اپنے پیاروں کو یاد کرتے ہوئے غم زدہ والدین کا کہنا ہے خدا جوان اولاد سے کسی کو جدا نہ کرے۔ شاہ نواز علی قادری کی رپورٹ۔ 8 سال بیت گئے لیکن زخم اب بھی تازہ ہے۔ 2012 میں بلدیہ فیکٹری کی اس جلتی سلگتی عمارت کے شعلوں نے صدیق کے 22 سالہ بیٹے شہباز کی زندگی کا چراغ بھی گل کر دیا۔ وہ اذیت والی تو وہ راتیں ہیں ہمارے لیے، خاص کر کے 50 دن جو نا میاں بیوی گیٹ پہ بیٹھے رہتے تھے دروازے پہ کہ ہو سکتا ہے کہ جو نا کہیں سے ہمارا بچہ آ جاوے۔ سانے میں موضوعاتی طور پر بچ جانے والے صدیق کے دوسرے بیٹے حنیف کا کہنا ہے کہ بھائی شہباز کو تلاش کرنے کی بہت کوشش کی۔ لائٹ بالکل آف ہو گئی، بالکل اندھیرا چھا گیا۔ ہم سوچے شاید ہے نا جنریٹر چلے گا، آن ہو جائے گی۔ تھوڑی دیر میں آوازیں آنا چالو ہو گئی کہ بھاگو آگ لگ گئی ہے۔ اب کچھ نظر آئے تو بندہ نکلے، بالکل سمجھ لو اندھیرا، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو یہ کہ کچھ لوگ بھاگتے ہوئے نظر آئے، کچھ لوگ گرتے ہوئے نظر آئے، آوازیں بھی چیخو پکار بھی بڑھ گئی تھی۔ پھر کھڑکیوں سے دھواں آنے لگ گیا۔ لفٹ تھی ڈپارٹمنٹ کے اندر، بڑی لفٹ تھی، کارگو لفٹ، اس میں سے بھی دھواں آنے لگ گیا۔ یہ کہ پھر مٹھا میں بھی بھاگنے کی میں بھی گر گیا ٹیبل سے ٹکرا کے۔ پھر کچھ لوگ اس طرف بھاگ رہے تھے، کچھ اس طرف بھاگ رہے تھے۔ یہ کہ ایک
लड़का जा रहा था, उसके पीछे नज़र पड़ी तो मैं भी उस तरफ भागा। ये कि मैं निकलने में कामयाब हो गया। सदीक का दामाद जमील भी और कुछ लोगों की जान तो बचाने में कामयाब हुआ, लेकिन फैक्ट्री में लगी आग ने इसको जिंदगी भर के लिए मासूर कर दिया। एग्जॉस्ट फैन के पास पहुंचे और उसको जाली उसके तोड़ी। रस्से से दोस्तों को निकालने के बाद वही रस्सा पकड़ के उतरने लगा, एकदम बेहोश हो गया, आंखों में अंधेरा आया। वो बिल्कुल स्ट्रेट गिरा था तो ये दोनों पाँव की रगें बिल्कुल जाम हो गई थी, तो इससे थोड़ा चलने में मसला हो गया। और जिस दोनों की वजह से मेरी अभी ये कंडीशन है, ना बात कर पा रहा हूँ, और सांस का मसला था मेरे को, उससे हार्ट प्रॉब्लम भी हो गया। सानिया बल्दिया के मुतासिरीन ये वाहिद ख़ानदान नहीं, बल्कि इन जैसे दर्जनों ख़ानदान की कहानियाँ भी मुख्तलिफ नहीं। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। सानिया बल्दिया फैक्ट्री में मुलाजमीन पर क़यामत गुजर गई। मवाज गोट के रिहायशी लियाकत की मौज़ाना तौर पर जान तो बच गई, लेकिन दिलखराश मनाजिर 8 साल बाद भी जहन से ना निकल पाए। जैसे याददाश्त मेरा ये भूला नहीं हूँ, ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। अभी बैठे बैठे आपके साथ सही हो बात करता हूँ, ठीक है, ज़हन माजी में ऐसे खोल जाता है, वो सब चीज़ें अभी भी आंखों के सामने। सीढ़ियों से उतरने लगा ना, मेरी नज़र आग पे पड़ी, इधर ही मैं गिर गया डायरेक्ट। या अल्लाह खैर, पे आग लग रहा है। माल के उस तरफ जो कोने वाला साइड है ना, आग वहाँ से सारा यूँ गोल दायरा जल के, ये जो तख्ता है ना, तख्ता ये एकदम जो है ना आंखों के सामने धड़ास करके गिरा। वो मजदूर भी पता नहीं निकले या नहीं निकले, अल्लाह आलम। उसके बाद कंपनी जली, दूसरी फ्लोर पे जली, तीसरी पे जलती गई। दुनिया खड़ी है, देख रही है, बिल्कुल। वहीं से गेट से बाहर नीचे से फैली, 2 मिनट में डिपार्ट जो है ना ऐसे लहर की तरह आई, झप करके लगा। वो जो तख्ते वाला डिपार्ट था, इतनी इतनी लकड़ियाँ, एक ट्रक माल एक तरफ ऊपर रखा होता, एक ट्रक माल एक तरफ ऊपर रखा होता, और ये पैंट है, जीन्स के जैकेट है। मेन गेट से वो भी छोटा गेट खुला हुआ था, बड़ा जो मेन गेट वो ताला लगा हुआ था, वो भी छोटा गेट जैसे आते जाते। मैं भी दरवेश बन गया, वो अभी ऐसा लग रहा है मैं खुद नहीं हूँ। सानिया बल्दिया के सफाक मुलजिमान में जुबैर चरिया और अब्दुर्रहमान भोला सरे फहरिस्त हैं। मुलजिमान ने आग कैसे लगाई और गिरफ्तार कैसे हुए, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। सानिया बल्दिया फैक्ट्री का मरकजी किरदार जुबैर चरिया। 11 सितंबर 2012 को क़यामत ढाने से पहले जुबैर चरिया फैक्ट्री में ही मंडला रहा था। अली इंटरप्राइजेज का मालिक इंकशाफ कर चुका है कि आग लगने से पहले जुबैर अपने 5 साथियों के हमरा फैक्ट्री आया। सबके हाथों में स्याह थैले थे। जुबैर चरिया ने एक बैग गोदाम की तरफ फेंका और 2 से 3 मिनट में आग फैल गई। दरिंदगी का आलम यह था कि एक तरफ इंसान जिंदा आग में जल रहे थे और जुबैर चरिया अपने दोस्तों के साथ चरस पी रहा था। मुलाजमीन आग बुझाने और मजदूरों को बचाने की कोशिश करते रहे, मगर जुबैर चरिया मजे से कैंटीन में बैठा रहा। ये वही जुबैर है जो फैक्ट्री के फुजले से लेकर भत्ते की सारी रकम ठिकाने लगाने में पेश रहता था। जुबैर का फैक्ट्री मैनेजर मंसूर और MQM के कारकुन माजिद बेग से बड़ा याराना था। मंसूर मैनेजर ने ही 2005 में जुबैर चरिया को फिनिशिंग डिपार्टमेंट में भर्ती किया। सानिया बल्दिया का एक गवाह जुबैर चरिया समेत अब्दुर्रहमान भोला और दीगर की सफाकियत का पर्दा चाक कर चुका है। अब्दुर्रहमान भोला भी उन नामालूम अफराद में से एक है जो आग लगने से पहले जुबैर चरिया के साथ फैक्ट्री आए थे। जुबैर की गिरफ्तारी के बाद ही 14 दिसंबर 2016 को बैंकॉक से पकड़ा गया था। कराची के मशहूर नीली कार केस के मुजरिम अंजाम को उसका करीब है। मॉडल कोर्ट ने सीरियल किलर खालिद जफर को 2 बार सजाए मौत सुना दी है। मुजरिम मेडिकल स्टोर्स मालिकान के लिए खौफ की अलामत बन गया था। इरफानुल हक की रिपोर्ट देखिए। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में खौफ और दहशत की अलामत नीली कार वाला अंजाम को पहुंच गया।
कराची के सिविक सेंटर में KD अफसरान के कत्ल केस की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। पुलिस ने दीगर अफसरान से भी तफ्तीश का फैसला किया है। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मुलजिम हफीज़ की मुकदमे में बाज़ाब्ता गिरफ्तारी डाल दी गई है। हफीज़ से तफ्तीश की रोशनी में मज़ीद अफसरान को तलब किया जाएगा। मुलजिम ने 2 अफसरान को कत्ल करके खुद को भी गोली मार ली थी। वारदात में इस्तेमाल होने वाले असलहे का फॉरेंसिक किया जा रहा है, जो हफीज़ के नाम पर रजिस्टर्ड है। कराची के बल्दियाती इदारों में एहतसाब का सिलसिला तेज़ हो गया। लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने तमाम मुलाजमीन के कवाइफ तलब कर लिए हैं। मज़ीद जान लेते हैं, समग्र नुमाइंदे मोहम्मद अली हफ़ीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अली हफ़ीज़, बताइएगा कि एहतसाब का शिकंजा सख्त होने लगा है। जी बिल्कुल, कराची के तमाम बल्दियाती इदारों में काम करने वालों को अपने कवाइफ जो है पेश करना पड़ेंगे। कब प्रमोशन लिया, किस महकमे से दूसरे महकमे में गए, तमाम तर तफसीलात जो है वो अब उनको सामने लाना आना पड़ेगी। कवाइफ मुलाजमीन की जो है रिकॉर्ड तलब कर लिए गए। महकमा बल्दियात के आला हुकाम ने बाकायदा जारी कर दिए गए। कराची की 6 DMC, KMC, इसके अलावा जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं, इसके अलावा सिंध सॉइल वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड है, इसके हजारों मुलाजमीन हैं जिसके बारे में शिकायत थी। कहीं गैर हाजिर रहते हैं, कहीं घोष मुलाजमीन है, कोई तनख्वाह नहीं लेते, कहीं ने गैर कानूनी प्रमोशन हासिल की है। अब तमाम चीजें जो है उसका जो है रिकॉर्ड चेक किया जाना शुरू हो रहा है। ये बहुत बड़ा मुलाजमीन, जैसे ही नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तमाम बल्दियाती इदारों में जो है खलबली मच गई है। अब देखना ये कि इस रिकॉर्ड के बाद जो है जिन्होंने गलत काम किए उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका अली हफीज़। कराची में कयूमाबाद हादसे के जिम्मेदार टैंकर ड्राइवर को ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने मुबैना तौर पर पैसे लेकर फरार करवाया। शहरियों के वीडियो बनाने पर एहलकार ने दौड़ लगा दी। समा की खबर पर DIG ट्रैफिक ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का ज़्यादती के मुजरिमों को इबरतनाक सजाएं दिलवाने के लिए कानून साजी का ऐलान। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में बताया कि मोटरवे पर खातून से ज़्यादती के अफसोसनाक वाक़े ने पूरे मुल्क को हिला दिया है। सज़ा सख्त ना होने की वजह से ऐसे जराइम बार बार होते हैं। एक ऐसा हादसा हुआ जिससे सारा हमारा मुल्क हिल गया, और मैं तो खास तौर पे सोच रहा था कि उन बच्चों के ऊपर क्या गुजरी होगी। ये सारी जिंदगी के लिए ये ट्रॉमा रहता है। हम 3 टियर इसके ऊपर काम करें। नंबर 1 तो पुलिसिंग, रजिस्ट्रेशन। सारी दुनिया के अंदर सेक्स ऑफेंडर्स रजिस्टर्ड होते हैं, क्योंकि दुनिया का तजर्बा हमें ये बताता है कि जो सेक्स ऑफेंडर्स होते हैं वो रिपीट ऑफेंडर्स होते हैं। जिस तरह ये जो एक अभी भागा हुआ है आबिद, जो भी उसको सजा दी थी जाहिर है वो इबरतनाक नहीं थी, क्योंकि उसने फिर से किया। बीच में कितने उसने ऐसे जुर्म किए जो अनरिपोर्टेड है। तैयारी कर रहे हैं एक बिल की, लेजिस्लेशन की, जिसमें इबरतनाक सजा हो, खौफजदा हो लोग, जिस तरह की वो एविडेंस देनी हो विटनेस बॉक्स में खड़े होके, वो बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए भी हम प्रेपरेशन कर रहे हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने हर ज़िले में एक सीनियर पुलिस ऑफिसर को रात में गश्त करने का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस ने यह भी पूछ लिया कि IG पंजाब रोज़ाना कितने घंटे और कहां कहां गश्त करेंगे। शाहिद हुसैन की रिपोर्ट देखते हैं। मोटरवे ज्यादती केस की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने पुलिस के सीनियर अफसरों को हर जिले में रोज रात को गश्त करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने सवाल उठाया कि क्या हुकूमती प्रॉपर्टी पर कत्ल या जख्मी होने वाले के खानदान को दियत की रकम के बराबर अदायगी होनी चाहिए। उन्होंने फ्रीकैन के वोकला को आइंदा समाअत पर बहस के लिए तलब कर लिया। समाअत के दौरान पुलिस की रिपोर्ट पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपका पुराना पेट्रोलिंग सिस्टम नाकाम हो गया है। हुकूमत आइन के तहत शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की पाबंद है। एक और केस में हाई कोर्ट ने मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की अराजी पर पुलिस कब्जे के खिलाफ दरखास्त पर IG पंजाब को तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पुलिस कब्जा ग्रुप बन जाए तो मोटरवे जैसे वाकयात होते रहेंगे। गंदे अंडे पुलिस से निकाल दें। अगर मुआशरे को जिंदा रखना है तो बड़े अफसरों को माफ करना छोड़ दें। देर आयत फिर भी दुरुस्त ना आयत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मेगा सफरी मंसूबा शोलों की जद में आ गया है। एक माह में BRT की चौथी बस में आग लग गई। इंतज़ामिया ने बस सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी है। सज्जाद हैदर की रिपोर्ट।
BRT की बस में आग लगना मामूल बन चुका। बस में पहली आग 26 अगस्त को लगी। दूसरा वाकया 2 सितंबर को पेश आया। तीसरी बार आग 11 सितंबर को लगी, जबकि आज चौथी बस में अचानक हयाताबाद में आग भड़क उठी। बस मुसाफिरों से भरी हुई थी, जिन्होंने भागकर जान बचाई। आग के वाकयात पर शहरियों ने भी तशवीश का इजहार किया। फोर्थ बस है जो इस तरह आग भड़क उठती है ना, लेकिन क्यों? इसमें तो लोग सफ़र भी करते हैं। आपका सारा ऑपरेशन स्टॉप हो चुका है और मेजॉरिटी ऑफ आपकी जो है बसेस भी आपकी स्टॉप हो चुकी हैं। कोई आपके पास सेकंड वे नहीं है आपके पास यहाँ से चमकनी तक ट्रैवल करने का। BRT इंतजामिया ने बढ़ते हुए आग के वाकयात के बाइस बस ऑपरेशन सर्विस को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया। अवाम के वसी तर मुफाद में और जो बस बनाने वाली कंपनी उसकी सिफारिश पर जो बस सर्विस BRT बस सर्विस को आर्जी तौर पर सस्पेंड किया गया है। इंतजामिया का कहना है कि तमाम बसों के मुकम्मल इंस्पेक्शन के बाद ही दोबारा बस सर्विस शुरू की जाएगी। कैमरामैन ज़कोल्ला के साथ सज्जाद हैदर, समा, पेशावर। अफसोसनाक खबर, कराची के इलाके कोरंगी में बेटे को करंट लगा तो बचाने की कोशिश में मां भी दम तोड़ गई। गार्डन में शॉर्ट सर्किट के बायस लगने वाली आग ने मियां बीवी की जान ले ली। सऊद बिन मुर्तज़ा की रिपोर्ट। कोरंगी अल्लाहवाला टाउन के इलाके में अफसोसनाक वाकया। मोटर की तार लगाते हुए नौजवान बेटे जीशान को करंट लगा तो मां बचाने दौड़ी और खुद भी बिजली की जद में आ गई। करंट जैसे ही लगा हुआ है तो हमने तार ऊपर से निकाल दी एकदम। जैसे तार निकाली तो फिर जो है ना दोनों बंदों को बाहर निकाला एकदम। छोटे भाई मोहम्मद के मुताबिक भाई जीशान और वालदा को मिट्टी में दबाया लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। चीखों की आवाज़ आई, मैं भागता हुआ आया, देखा तो भाई को और अम्मी को करंट लगा हुआ था। यहाँ से हम लोग आए तो दरवाज़ा कोई नहीं खोल रहा था। यहाँ से दरवाज़ा खोला, फिर मैंने बंदों को बुलाया कि यहाँ करंट लगा हुआ है, तारें निकालो। फिर सब आए। रेस्क्यू ने कानूनी कार्रवाई के बाद लाशें जिना अस्पताल से मुर्दा खाने भेज दी, जहां से आबाई इलाके मुल्तान रवाना किया जाएगा। दूसरी जानिब गार्डन के इलाके में शॉर्ट सर्किट के बाइस फ्लैट में आग लग गई। मियां बीवी 25 साल राहील और 23 साल आसमा झुलस कर मौके पर ही दम तोड़ गए। दोनों की नमाज जनाजा मक्का मस्जिद गार्डन वेस्ट में अदा की गई। कैमरामैन शाहिद बलोच और कामरानुद्दीन के साथ सऊद बिन मुर्तज़ा, समा, कराची। भारी जुर्माना हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने भी डांट पिलाई, मगर के इलेक्ट्रिक की ढिठाई ख़त्म न हुई। कराची में गर्मी बढ़ने के साथ ही शहरियों पर तवील लोड शेडिंग का अज़ाब मुसल्लत कर दिया गया है। गैस प्रेशर में कमी ने भी शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। अशरफ खान की रिपोर्ट। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। के इलेक्ट्रिक ने कराची वालों को एक बार फिर दिन में तारे दिखा दिए। जरा सी गर्मी क्या बढ़ी, वही गैस प्रेशर में कमी और पैदावारी सलाहियत मुतासिर, रवायती बहानेबाजी शुरू। लोड शेडिंग भाई बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से हो रही है। 1 घंटा लाइट आती है, 2 घंटा जाती है। सुबह उठो काम पे जाओ तो लाइट नहीं होती, शाम में आओ तो लाइट नहीं होती। लाइट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। पहले ज़्यादा अच्छा था, अब तो बहुत ही ज़्यादा हो रही है और बिला ऐलानी हो रही है। जली गई तो आने का टाइम नहीं है, कोई पता ही नहीं है। एक दिन में 4-4 दफा लाइट जा रही है। लोड शेडिंग का दौरानिया 9 घंटे तक पहुंच गया। मलीर, शाह फैसल, लांढी, औरंगी, कोरंगी और नॉर्थ आजमाबाद समेत दीगर इलाके मुतासिर हैं। लोड शेडिंग तो भाई अब दोबारा बहुत ज्यादा परेशान कुन हालात में आ गए। एक तरफ बिजली नहीं तो दूसरी तरफ SSGC की 5 फील्ड से गैस प्रेशर कम हो गया। तलब और रसद के घन चक्कर में सनतकार भी बिलबिला उठे। हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। बिजनेस कम्युनिटी, इंडस्ट्री बड़ी परेशान है कि अपने जो प्रोसेस हैं उनको कैसे कंटिन्यू करें। गैस प्रेशर में कमी और बिजली की लोड शेडिंग से न सिर्फ रिहायशी बल्कि सनती सार्फिन की मुश्किलात में इजाफा हो गया। अशरफ खान, समा, कराची। बात करते हैं पार्लियामेंट के हंगामा खेज मुश्तरका इजलास की। वजीर आज़म इमरान खान ने वाज़े कर दिया कि करप्शन पर किसी किस्म की मुफाहमत नहीं हो सकती। अपने खिताब में इमरान खान ने अपोजिशन को आड़े हाथों लिया। कहा इनके मफादात पाकिस्तान से अलग हैं। ज़ाती मफादात के लिए अपोजिशन ने हुकूमत को ब्लैकमेल किया। वजीर आज़म ने शरीफ खानदान और इसहाक डार पर भी कड़ी तनकीद की। हम ये उम्मीद लगा रहे थे कि हमारे साथ मिलके ऑपोजिशन फैटफ की लेजिस्लेशन इसलिए पास करेगी कि ये पाकिस्तान के लिए है। इनके लीडर्स का इंटरेस्ट और पाकिस्तान का इंटरेस्ट अपोज्ड है। अपने ज़ाती इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने हर किस्म की हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश की। अगर इनको कोई डर नहीं है, अगर उन्होंने हमारी लॉन्ड्रिंग नहीं की
तो इनको फिक्र क्या चीज है? हमें क्यों नहीं डर लगा हुआ? हुदैबा पेपर मिल ओपन एंड शट केस था। इस हार्ट डाक ऐसे लगता है कि उसके बाप की साइकिल की दुकान नहीं थी, मेफेयर में कोई मर्सिडीज का शोरूम था। नवाज शरीफ, इनकी शरीफ की फैमिली, अब इनकी फैमिली देख लें, इनकी फैमिली ऐसे नहीं लगती कि ग्वाल मंडी में बड़ी हुई है, लगता है ये बकिंगम पैलेस में बड़े हुए हैं सारे। किधर से पैसा आया? बात करें करप्शन की तो कहते हैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। पहले दिन से शुरू कर दिया कि जनाब हम मानते ही नहीं इलेक्शन को, हम कह रहे हैं कि खोलें जो आप चाहते हैं, इसके बाद बात ही नहीं की। ये तो अपने जो लीडर्स की चोरी किए हुए पैसे की हिफाजत कर रहे हैं। ऑपोजिशन को फिर कहता हूं, आपने जो भी, हम हर तरह की आपसे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं, जो आप चाहते हैं मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए, लेकिन हम करप्शन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए नहीं। जबकि शहबाज शरीफ ने इंसदाद दहशतगर्दी और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल्स में तरामीम पर वोटिंग को जाली करार दे दिया। कहते हैं स्पीकर ने हमारी तरामीम पर बहस तक न होने दी। बिलावल बोले, बताएं इन तरामीम का आम ताजिर और मुआशी सरगर्मियों पर क्या असर पड़ेगा? APC में मुश्तरका लाएहामल का लाने का ऐलान कर दिया। हुकूमत पर पार्लिमानी कार्रवाई को पांव तले रोंदने का इल्जाम। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने वोटिंग को जाली करार दे दिया। कहा स्पीकर की डायस तक गया लेकिन उन्होंने मुझसे बात तक न की। मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट्री का एक साने आए ब्लैक डे, और फिर जो बिल्स में तरमीम पेश की गई, उन तरमीम के ऊपर गुफ्तगू यानी डिबेट करने की इजाजत नहीं दी। आज स्पीकर असेंबली में बिहेव कर रहे थे जिस तरह के वो डिक्टेशन दे रहे थे। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि हुकूमत को बताना चाह रहे थे कि वो जो तरीका इख्तियार कर रही है वो गैर आईनी और गैर कानूनी है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में अमेंडमेंट लेकर आए हैं, जहां पावर ऑफ अरेस्ट में वो पोर्शन हटाया गया है जिससे आपको वारंट की जरूरत है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा आम बिजनेसमैन पे, इकोनॉमिक एक्टिविटी पे क्या इम्पैक्ट होगा? मदीना के रियासत में अब हमारे बात तो सुनते। अपोजिशन रहनुमाओं का यही कहना है कि जो कुछ हुआ उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में मुशावरत के बाद मुश्तरका लाएअमल का ऐलान किया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि अपोजिशन के साथ मुल्की मफाद में मुज़ाकरात किए, उनकी काबिल अमल तरामीम को कबूल भी किया। स्पीकर ने रूल्स के मुताबिक अपोजिशन को मौका दिया। उनका मज़ीद क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। पाकिस्तान को मौका मिल जाता कि पाकिस्तान से जो कानून साजी का तकाजा किया गया वो पाकिस्तान भी करके आया, और जो हमारी अब प्लेनरी होनी थी या जो एशिया पैसिफिक ग्रुप का इजलास होना था, जो फेस टू फेस मीटिंग होनी थी, तो पाकिस्तान को वहाँ सुबह की होनी थी। तो वो किसका एजेंडा आगे बढ़ता? पाकिस्तान के एजेंडे को तो नुकसान पहुँचा। उनको शिकस्त हुई, उनके 190 लोग मौजूद थे और हुकूमत के एलाइज के 200 लोग थे, जो बढ़कर बाद में 204 हो गए। जब शिकस्त वाज़ेह हो गई तो फिर उन्होंने मामले को घसीटने की कोशिश की और मुख्तलिफ किस्म के रूल्स को कोट किया। और ऐसे में हुकूमत का मौके पे चौका। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अपोजिशन के शोर शराबे के बावजूद धड़ाधड़ कानून साजी, हिज़्ब खिलाफ का वॉकआउट भी किसी काम न आया। इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग, इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल समेत कई बिल मंजूर कर लिए गए। उस्मान खान की रिपोर्ट। FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के जतन। कानून साजी के लिए बुलाए गए पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शोर शराबे के दौरान तेज रफ्तार कानून साजी। All those in favor of the motion may say aye. All those against say no. I think ayes have it and consequent motion is adopted. बिल पेश करने की तहरीक की हाँ या ना कहकर मंजूरी पर अपोजिशन का शदीद एतराज। स्पीकर असद कैसर ने अरकान को नशिस्तों से खड़ा करके राय शुमारी कराई तो हुकूमत के 200 अरकान और अपोजिशन के 190 वोट निकले, जिनके बाद बिल की शिकवार मंजूरी शुरू हुई तो पीपल्स पार्टी के सेनेटर रजा रबानी ने बाबर रवान की जानिब से बिल पेश करने पर एतराज किया, जिसे वजीर कानून फरोग नसीम ने चैलेंज करते हुए मुस्तरद कर दिया। स्पीकर की जानिब से बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ को फ्लोर दिए जाने पर हुकूमती अरकान
ने शोर शराबा शुरू कर दिया। अपोजिशन बेंचों का भी शदीद रद्द अमल। Order in the House, please. ऐवान में हुल्लड़बाजी, अपोजिशन अरकान का स्पीकर डायस का घेराव, एजेंडे और बिल्स की कापियां फाड़कर टुकड़े स्पीकर पर लहरा दिए। अपोजिशन की जब एक न चली तो एहतजाजन ऐवान से वॉकआउट कर गए। अपोजिशन के वॉकआउट ने हुकूमत के लिए मजीद आसानी पैदा कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग तरमीमी बिल 2020 और इस्लामाबाद वक्फ इमलाक समेत दीगर बिल्स मंजूर कर लिए गए। चेयरमैन सेनेट को हटाने की तहरीक के बाद FATF बिल भी अपोजिशन की अक्सरियत के बावजूद हुकूमत के हक़ में मंजूर हो गया। हैरान कुन तौर पर अपोजिशन ही नहीं, हुकूमत के अरकान भी इस अहम तरीन दिन पर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से गायब नजर आए। इजलास से कौन कौन गैर हाजिर रहा, इस रिपोर्ट में जान लेते हैं। अददी बरतरी के बावजूद पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अपोजिशन को सुबकी का सामना। अपोजिशन इत्तेहाद के 30 से जायद अरकान इजलास से गैर हाजिर रहे। आसिफ अली जरदारी अदालत के बाइस इजलास में ना आ सके तो खुर्शीद शाह प्रोडक्शन ऑर्डर जारी ना होने पर शिरकत ना कर सके। लेकिन डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला इजलास से गैर हाजिर रहे। JUI के तलहा महमूद और अताउर रहमान भी ऐवान ना पहुंच सके। नून लीग के रियाज पीरजादा, चौधरी तनवीर, अफजल खोकर और अहमद रजा मानिका भी ना आए। यही नहीं, बलूचिस्तान से BNP के अख्तर मेंगल भी इस अहम तरीन इजलास से गैर हाजिर नजर आए। मगर फिर भी राजा जफरुल हक कहते हैं मसला गैर हाजिरी का नहीं बल्कि वोटों की गलत गिनती का है। मेरा नहीं ख्याल कि अपोजिशन गैर हाजिर रही है, गिनती का फर्क था। गिनती ठीक नहीं की जा रही थी। असल शोर तो इसी बात पर मचा कि तादाद कितनी थी और कितनी जाहिर की गई। हस्ब इख्तिलाफ खा कुछ भी कहे, इतने अहम तरीन दिन पर ऐवान से अरकान की गैर हाजिरी एक सवालिया निशान है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून हर सूरत मंजूर कराना है। अहम हुकूमती शख्सियात ने अपोजिशन के अरकान पार्लियामेंट से खुफिया राबते शुरू कर दिए हैं। खुफिया राब्ते हो रहे हैं और उन्हें ये कहा जा रहा है कि बिल जब मंजूरी के लिए पेश किया जाए तो उससे गैर हाजिर रहें। All those in favor of the motion may say aye. All those against say no. I think ayes have it and consequent motion is adopted. अपोजिशन जमात हर मोड़ पर अददी अक्सरियत के बावजूद शिकस्त क्यों खा जाती है? एक साल बाद तारीख ने फिर अपने आप को दोहराया है। उस वक्त भी हमने बताया 10-11 लोग होंगे सेनेटर, अब भी हमने बताया पार्लियामेंटेरियंस अपोजिशन के होंगे, वो गैर हाजिर रहेंगे। से आए से नो, से आए से नो, जुबान पे अंग्रेजी थी बिजली की रफ्तार से। किसी को डांटा और किसी को समझाया प्यार से। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में स्पीकर असद कैसर अलग ही अंदाज में नजर आए। दिखाते हैं आपको। Of the Constitutional Islamic Republic of Pakistan, Islamic Republic of Pakistan, Republic of Pakistan. All those in favor of the motion may say aye. All those against say no. All those. कितना हो गया? All those say no, say aye, say no, say no, say aye, say no, say aye. Class 2 to 5. Ruling, please. And rejected by the Senate. इतना गला इतना खराब ना करे। Say aye, say no, no cross pass, no cross talk. मुश्ताक साहब मूव करे प्लीज। नहीं मूव कर रहे। In favor of say aye, say no, say aye. Rejected. Challenge. And rejected by the Senate. Okay. Hello. पढ़ ले पूरा पढ़ ले। And rejected by the Senate. I think ayes have it and consequent amendment is adopted. To the class 9 stand part of the bill. सबसे ज्यादा मेहनत तो मुझे करनी पड़ती है तो बस करने दे। All those in favor of the motion. आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने गुजरावाला में पाक फौज की जंगी मशकों का मुआयना किया। तफसीलात उस्मान खान की रिपोर्ट में। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का गुजरावाला का अहम दौरा। फौजी दस्तों की जानिब से जंगी सलाहियतों का भरपूर मुजाहिरा। बख्तरबंद, आर्टिलरी, इंजीनियर्स और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री समेत दीगर ने आला तरीन महारतों के जौहर दिखाए।
سپہ سالار نے تربیتی مشقوں کا معائنہ کیا، افسروں اور جوانوں کے بلند حوصلے کی بھرپور تعریف کی، آپریشنل تیاریوں کو بھی خوب سراہا۔ ISPR کے مطابق دفاعی سفر میں ایک اور اہم سنگ میل بھی عبور کر لیا گیا۔ آرمی چیف نے براک کامبیٹ اسکلز ٹریننگ کمپلیکس کا افتتاح کر دیا۔ تربیتی کمپلیکس جارحانہ کارروائیوں کے دوران جنگی مہارتوں کو مزید بڑھاتا ہے۔ آرمی چیف کے دورے کے موقع پر منگلا اور گوجرانوالا کے کور کمانڈرز بھی ہمراہ تھے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کو سینٹرل کمانڈ فارمیشنز کے آپریشنز، تربیت اور انتظامی امور پر بریفنگ بھی دی گئی۔